ہوتا ہے اس میں صرف 2 ٹریلین تقریباً قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ چلا جاتا ہے. تو باقی اگر آپ دیکھ لیں کہ 2.5 ٹریلین صوبوں کو جاتا ہے اور پھر 1700 ارب ڈیفنس پہ جاتا ہے. تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ شروع کرتی ہے ڈیفیسٹ سے 600 ارب روپے کا ڈیفیسٹ. تو اس لیے یہ ایک لوگ دیکھتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے لیے ہیلپ کے لیے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ 2.5 ٹریلین 2500 ارب روپیہ سیدھا صوبوں کو چلا جاتا ہے، جس میں سندھ کا اپنا شیئر پورا آ جاتا ہے. تو اصل میں تو یہ زیادہ جو کراچی کا ایشو ہے یہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اربن، بٹ انفارچونیٹلی کیونکہ جو حالات ہیں وہ گورنمنٹ جیتی ہے انٹیریئر سندھ سے، اور وہ پھر کراچی کو جو اس نے ٹریٹمنٹ 10 سال میں دیا وہ اب سب کے سامنے ہے. لیکن اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ سارے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے، اس لیے ہم یہ آج جو ایک اسپیشل پیکیج ہم نے اوور آل تیار کیا ہے اپنی ریسورسز سے، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے، BOT بیسس پہ، تو وہ ہم انشاءاللہ 162 ارب روپے کا پیکیج ہے، جس میں جو ہمارے پروجیکٹس پرپوز ہیں وہ 18 ہیں. ٹرانسپورٹ جو کہ بہت بڑا ایشو ہے کراچی کا، پبلک ٹرانسپورٹ، اس میں 10 پروجیکٹس ہیں. جو اس سے بھی بڑا ایشو ہے واٹر سیوریج، اس میں 7 پروجیکٹس ہیں. اور پانی کا جو پروجیکٹ ہے وہ اس کے لیے پوری کیمپین چلانی پڑے گی کراچی کو پانی کنزرو کرنے کے لیے، پانی بچانے کے لیے. یہ ایک ہمارے ملک میں عجیب چیز ہے کہ میں نے کبھی سنا نہیں پانی بچانے کی کوئی کیمپین کبھی پاکستان میں کبھی چلی ہو. میں آپ سب کو بتا ہی رہا تھا کہ جب ہم آسٹریلیا میں کرکٹ کھیلنے جاتے تھے تو عموماً وہاں ہوز پائپ بین آ جاتا تھا. انگلینڈ جیسی جگہ جیسے پانی کی اتنی کمی نہیں ہے، وہاں بھی تھوڑی سی بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ پانی کو ایک دم کنزرو کرتے تھے. یہاں کبھی کسی نے کنزرو نہیں کیا. ایک طرف لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، دوسری طرف وہ پانی سے گاڑیاں دھوئی جا رہی ہیں اور کوئی کسی کو کنزرویشن کی فکر نہیں. تو اس کے اوپر ایک پوری، میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک پوری کیمپین جو میں خود آ کے آپ کے ساتھ مل کے پوری چلائیں گے کراچی کے اندر. جب آپ تیاری کر لیں تو ہم کم از کم پانی بچانے کے پورے طریقے بتائیں گے، کیونکہ اس کے لیے جب تک باہر سے پانی لے کے آتے ہیں جو K4 کی بھی میں نے ڈسکس کیا ہے، وہ اس کے اندر جو کمپلیکیشنز ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، اور وہ کب تک کلیئرٹی اس کے اندر آتی ہے وہ تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن جو امیجیٹلی ہم کر سکتے ہیں، اگر آپ پوری لسٹنگ کر لیں، ہم پوری کیمپین چلائیں، میڈیا کی کیمپین، لوگوں کو انوالو کریں کہ کیسے پانی بچا سکتے ہیں، اور اس پانی بچانے سے بہت بڑا پانی اویلیبل ہو جائے گا لوگوں کے لیے جس پہ کوئی خرچہ بھی نہیں ہوگا. تو وہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ آپ تیاری کریں. سیوریج کا بہت بڑا ایشو ہے جس کے لیے ہم تیاری 7 پروجیکٹس میں سے سیوریج کے بھی ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کراچی کا ماسٹر پلان. کراچی جس طرح آپ اوپر جہاز میں آئے تو ایسے لگتا ہے کہ پورا کانکریٹ کا سلیب پڑا ہوا ہے اوپر، کوئی گرین ایریاز بھی ختم ہو گئے ہیں، کوئی نظر نہیں آتے، اور دوسری طرف پھیلتا جا رہا ہے کراچی، جو کہ کوئی بھی جو بھی آپ کر لیں جتنا پھیلتا جائے گا اس کو آپ امیونٹیز نہیں دے سکتے، پانی نہیں دے سکتے، اس کا سیوریج سسٹم، اس کے لیے سیوک فیسلٹیز، ایون یہ جو لا اینڈ آرڈر کے لیے پولیسنگ کرنے کے لیے اگر اتنا پھیلا ہوا شہر ہو اس کے لیے سب مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو کراچی کا جو ماسٹر پلان ہے یہ جلدی سے بنایا جائے، اور اس سے پہلے ایک انٹرم کوئی فیصلے کریں کہ اس ایریا سے زیادہ کراچی اب ایکسپینڈ نہیں ہوگا، یا ایگزسٹنگ یہ جو کچی آبادیاں سارے پاکستان میں، ایک طرف کچی آبادیاں اور کراچی میں سب سے زیادہ ہے، اور یہی کچی آبادیوں کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. توجہ تب جائے گی جب اگر پھیلے گا نہیں کراچی، تو جب کراچی ریسٹرکٹ ہو جائے گا تو اندر پھر ایریاز ڈیولپ ہونے شروع ہوں گے. اور تب اسی طرح جس طرح ممبئی میں یہی پرابلمز تھے، وہ بھی پھیل نہیں سکتا تھا، تو آخر میں انہوں نے آگے کچی آبادیوں کو ڈیولپ کر کے اوپر لے کے گئے ہیں. تو وہ میں چاہتا ہوں کہ جب تک پورا ماسٹر پلان نہیں بنتا، بیٹھ کے کراچی میں ایک انٹرم
फैसले करें कि आपने कई चीज़ें रोकनी है कराची में, क्योंकि 2.5 साल में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा ये शहर। और अब ये जो ऊपर जाने का फ़ैसला किया है, हमने सिविल एविएशन को कहा कि सिर्फ वो जो एयरपोर्ट के इर्द गिर्द एक दायरे में बिल्डिंग्स ऊपर नहीं जा सकती वो नोटिफाई करें, बाकी सारी जगह इजाज़त होनी चाहिए बिल्डिंग जितनी भी ऊपर जाए बचाने के लिए अपनी बाकी स्पेसेस। तो मैं आपसे इन टच रहूँगा। मैंने इमरान इस्माइल गवर्नर को मैं मुसलसल इन टच हूँ। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कराची के ऊपर अब पूरी हम जो आप काम कर रहे हैं इसकी अब इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के ऊपर जाएं कि जो हम प्लान कर रहे हैं वो कर भी सकें हम, तो उसके लिए पूरी तैयारी करें। जो भी आपको मदद चाहिए इम्प्लीमेंटेशन में तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। हमने अनाउंस किया था जब शाह महमूद कुरैशी और हम थरपाकर गए थे कि हमने सेहत कार्ड्स देने, क्योंकि सबसे पीछे रह गया थरपाकर और बच्चे मरते हैं। लेकिन हमने और भी इस बारी मैंने 4 तारीख को या जब भी आप फैसला करें, हमने यूनिवर्सिटी एट हैदराबाद ये प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट इसको चलाएगी, इसके लिए पैसे भी अवेलेबल हैं, तो इसका अनाउंस करना है। और फिर ये जो RO प्लांट्स हैं डिस्ट्रिक्ट थरपाकर में वो हमने अनाउंस किए थे तकरीबन 1 अरब रुपए के, वो इंशाल्लाह पूरे करेंगे। और 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स जो अब निकल जाने चाहिए उनको सारा क्लियरेंस हो गई है, NOC सारे दिए गए हैं। और 4 एम्बुलेंसेस वो मैंने कहा था कि थरपाकर के लिए अवेलेबल करें। कराची की तरक्की के बगैर आगे मुल्क नहीं बढ़ सकता। वजीर आजम इमरान खान का ऐसा कहना है। कराची के लिए किए गए वादे पूरे करेंगे। उन्होंने कहा कि कराची के लिए मुख्तलिफ प्लान्स तैयार किए जा रहे हैं, सीवरेज सिस्टम पर काम किया जाएगा। उसके अलावा पानी के इशू पर जो है वो बात करना बहुत ज़रूरी है और पानी को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, तो कराची में इस मौजू पर भी बात की जाएगी। कराची पैकेज के तहत 162 अरब रुपए खर्च होंगे और शहर कायद में 18 मंसूबों पर काम होगा। कराची पैकेज में सीवरेज, ट्रांसपोर्ट और पानी के साथ साथ दीगर मंसूबे शामिल हैं। वजीर आजम ने हैदराबाद में यूनिवर्सिटी की मंजूरी भी दे दी है। 5 अप्रैल को हैदराबाद में यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद भी रखा जाएगा। ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है, तो इसके लिए वजीर आजम ने 10 मंसूबों की मंजूरी दे दी है, जबकि 8 दीगर मंसूबे भी शामिल हैं जिनकी मंजूरी दी गई है। और इसके साथ साथ पानी की कंजर्वेशन पे भी बहुत काम किया जाएगा। पानी को कंज्यूम कैसे किया जाए और पानी का इस्तेमाल जो है, जो उसका पानी का ज़िया है, उसे कैसे रोका जाए, इस पर भी प्लान जो है वो मुरतब किया जाएगा। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि जब वो हेलीकॉप्टर से सफ़र कर रहे थे, कराची देख रहे थे, तो यूं लग रहा था जैसे कंक्रीट है, एक कोई ग्रीनरी नहीं है, कोई बाग नहीं है और उसके अलावा लोगों के लिए कोई इंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है। अगर बाग नहीं होगा, ग्रीनरी नहीं होगी, तो लोग कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। तो वज़ीर आज़म ने इस चीज़ को भी एड्रेस किया कि इस पर भी काम किया जाएगा, दरख्त भी लगाए जाएंगे। दीगर खबरों में आपको बताएं कि भक्कर के करीब मुसाफिर बस ने तालिबात के रिक्शे को कुचल डाला है। हादसे में 5 तालिबात और रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक हो गया। 2 जख्मी तालिबात को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तालिबात इम्तिहान देने के बाद वापस आ रही थी। अफसोसनाक खबर आपको दें, भक्कर के करीब मुसाफिर बस ने तालिबात के रिक्शे को कुचल डाला। हादसे में 5 तालिबात और रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक हो गया। 2 जख्मी तालिबात को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे उसामा हैदर से। उसामा हैदर, बताइएगा क्या कंडीशन है अब तालिबान की? आज बिल्कुल ये अफसोसनाक वाकया जो है बखर जंग रोड पर जैसे वाला के करीब पेश आया, जहां पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने पेपर देकर घर जाने वाली तालिबात के रिक्शे को कुचल दिया, जिसके नतीजे में 7 तालिबात जो है वो मौके पे जाँ बहक हो गए, जबकि एक रिक्शा ड्राइवर है उसकी डेथ हुई है। इसके बाद अहले इलाका जो कसीर तादाद जो है मुश्तिल अफराद की यहाँ पर मौजूद है और उनका एक ही बात पर जो है ये फोकस है कि इस जो बस सर्विस है उसको फिलफोर जो है इसका रूट कैंसिल किया जाए, क्योंकि ये इस बस सर्विस का मुसलसल 5वां हादसा है जिसमें एक ही हादसे में 7 से 8 अफराद की हलाकत हुई है। यहाँ ये भी बताते चले कि वाकये की इत्तला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर बकर वकास रशीद और जो DPO शाइस्ता इकराम है वो मौके पर पहुंची और उन्होंने जो है हालात को जो है जायजा लिया और फौरी तौर पर इमदादी कामों को जो है वो शुरू कराया। रेस्क्यू 1122 ने जो है फौरी तौर पर। ठीक है उसामा, ये बताएगा कि कुल कितनी तालिबात मौजूद थी इस रिक्शे में और जख्मी कितनी तालिबात हुई हैं?
जी, इसके अंदर जो है रिक्शे में 8 टोटल अफराद सवार थे, जिसमें एक रिक्शा ड्राइवर था और 7 तालबात थी, जिसके अंदर जो है 6 जो है वो मौके पे जान बहक हुई और 2 को अस्पताल जब मुंतकिल किया गया तो रास्ते में एक स्टूडेंट जो है वो उसकी मजीद हलाकत हुई। जिस तरह जो है कुल तादाद जो जान बहक तालबात की तादाद 7 है और एक जो रिक्शा ड्राइवर इस समय टोटल 8 अफराद की डेथ हुई है। जी ठीक, और समा डॉक्टर्स क्या बताते हैं तालिबात की कंडीशन के हवाले से इस वक्त? जी, जो एक जख्मी जो तालबा है उसकी हालत जो है इस वक्त खतरे से बाहर है, उसकी ज़राई तिब्बी इमदाद दी जा रही है और डॉक्टर्स का कहना है कि वो नॉर्मल है, उनको जो टांग पे जो है वो चोट लगी है, जिसके बाद उन्हें तिब्बी इमदाद देके अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। जी ठीक, उसामा एक बार फिर नाज़रीन को इस हादसे से मुतालिक बताएगा कि ये अफसोसनाक वाकया कब, कैसे और कहां पर पेश आया है? जी, ये अफसोसनाक वाकया अब से कुछ देर कबल बखर जंग रोड पर जैसे वाला के करीब पेश आया, जहां पर नाहम जमात के तालिबे इल्म का रिक्शा जो है उन्हें वापस लेकर घर जा रहा था। आज केमिस्ट्री का पेपर था, उसके बाद जो तालिबात फारिग होकर अपने घर जा रही थी पेपर देने के बाद के मुखालिफ सिमत से आने वाली बस जो कि मुल्तान से रेल खान जा रही थी, उसने जो है तेज रफ्तारी के बाइस उस रिक्शे को जो है कुचल डाला, जिसके नतीजे में 6 तालिबात जो है वो मौके पर जाँ बहक हुई और रिक्शा ड्राइवर था वो मौके पर जाँ बहक हो गया और जो 2 तालिबात थी वो जख्मी थी। उन्हें जो थोड़ी देर पर DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जो रास्ते के दौरान एक मजीद तालिबा जो है वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गई। अहले इलाका जो तमाम इस वक्त मौके पे अफराद हैं उनकी जो है आंखें इस वक्त नम है, पूरा इलाका शोक में डूबा हुआ है, तमाम अफराद जो है इस वक्त शोक में है और जो अहले इलाके हैं उनका यही कहना है कि राना जहाजेब नामी जो निजी बस कंपनी है जिसको फिलफोर जो है इसके रूट कैंसिल किए जाए ताकि जो इंसानी जानों की जो खेलने का सिलसिला है इसको रोका जा सके। मजीद नाज़रीन को अपडेट करें कि बखर जंग रोड जो है इस वक्त ब्लॉक है, दोनों जानिब ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें हैं, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं। पुलिस जो है वो मौके पे पहुंची हुई है, डिप्टी कमिश्नर और DC और जो डिप्टी साहब हैं वो भी मौके पे पहुंची हुई है। कोशिश कर रहे हैं कि अहले इलाका को मुज़ाकरात करके उनके जो मुतालबात हैं वो माने जाएं और उन्हें जो है इस बात की तसल्ली दी जाए कि इंतजामिया उनके साथ है और गम की घड़ी में। ठीक है उसामा, इस वक्त आपने बताया कि एहतजाज किया जा रहा है, तो जो मुसाफिर बस थी उसका ड्राइवर पकड़ा गया? जी नहीं, अफसोसनाक बात यह है कि जो ड्राइवर है वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। DPO साहब ने यकीन दहानी कराई है कि उसको जल्द अज जल्द जो है गिरफ्तार करके कानून की कटहरे में ले आएंगे, कानून की गिरफ्त में ले आएंगे और उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं जो कि उसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार रही हैं। जी ठीक है उसामा हैदर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए इस मामले से। उधर फैसलाबाद में स्पेशल ब्रांच पुलिस की कार्रवाई, यूनिवर्सिटियों में नशा सप्लाई करने वाली 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार खवातीन में इकरा और साइमा शामिल हैं। बात करते हैं एसी पर नुमाइंदा 24 न्यूज फरजाना सिद्दीक से। फरजाना सिद्दीक, बताइएगा। जी बिल्कुल, चंद रोज कबल स्पेशल ब्रांच की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें बहुत ही होलनाक इंकशाफात किए गए थे और बाकायदा तौर पर ये ऐसे भी ड्रग सेलर खवातीन हैं जो यूनिवर्सिटी की तलबा को मंशियात बेचती हैं जिनमें आइस नशा भी सरे फहरिस्त था। जो ही ये रिपोर्ट सरेआम आई थी इस पर न सिर्फ इंतजामिया बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट को भी हरकत में आना पड़ा और पुलिस डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ जगहों पर मंशियात फरोशी की जगहों पर भी रेड करना शुरू कर दिए थे। स्पेशल ब्रांच की जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें एक मर्द समेत 3 खवातीन को भी नामजद किया गया था और कहा गया था कि ये खवातीन ड्रग्स बेचती हैं और इनसे खरीदने वाली भी तलबा ही हैं, यानी कि खरीदने वाली भी खवातीन ही हैं। तो थाना सरगोदा रोड ने कार्रवाई करते हुए स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में नामजद उनमें से 2 खवातीन को हिरासत में ले लिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकरा, ये वही खातून है जिनका जिक्र स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में भी किया गया है कि ये तलबा को आइस नशा बेचती हैं। इनसे बात करते हैं, बताइएगा किसको बेचती थी आप? जी वकास, नान और कैसन लोगों को। कहाँ से खरीदती थी? अकबर से। कितने पैसों में बेचती थी? मैं इनको 3200 ग्राम में देती थी। कब से मुलव्वस थी आप इसमें? ये तकरीबन थोड़ी देर ही हुई है। कितनी देर? 1 माह, 1 हफ्ता? 3-4 माह। ठीक है फरजाना, बहुत शुक्रिया आपका। इसके बाद कराची का रुख करेंगे। आपको बताएं कि कराची का इलाका है गुलशन मेमार, जहां पर बाअसर शख्स ने अपनी अदालत लगा ली। गाजमी नामी शहरी को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया, वीडियो भी बनाता रहा। IG ने नोटिस लेकर वुरसा से पुलिस बर्ताव की रिपोर्ट तलब कर ली है। दानियाल सैयद इस पर रिपोर्ट करेंगे। के इलाके गुलशन मेमार में बाअसर शख्स ने अपनी अदालत लगा ली और गाजी नामी शहरी को बरहना करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद के दौरान बाअसर शख्स के कारिंदे गरीब शख्स पर तशद्दुद की वीडियो भी बनाते रहे। वीडियो में तशद्दुद करने वाले अफराद को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। तशद्दुद के बाद बाअसर अफराद ने शहरी को पुलिस के हाथों गिरफ्तार भी करवा दिया, जबकि गुलशन मेमार पुलिस ने बगैर किसी तहकीक और तफ्तीश के तशद्दुद के शिकार शहरी गाजी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। IG सिंध
نے پولیس کے رویے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ایس ایس پی ملیر سے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ایس ایس پی ملیر نے متاثرہ فیملی سے رابطہ کر کے ڈی ایس پی فرحت کمال کو تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ دانیال سید 24 نیوز کراچی۔ وزیر اعظم باغ ابن قاسم کی افتتاحی تقریب سے فیملیز کے لیے جب کراچی کے اندر گرمی پڑتی ہے تو شام کو لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں، اور شام کو کراچی میں بڑا اچھا موسم ہوتا ہے جتنی بھی دن کو گرمی ہو، تو یہ ایک زبردست میں نے تو دیکھا بھی نہیں، میں تو آج حیران ہو گیا ہوں دیکھ کے اس پارک کو۔ کراچی کے لوگوں کے لیے یہ بڑا ضروری ہے ہم کہ کراچی کے اندر گرین ایریاز کو بچائیں، اور جدھر ہم ہو سکتا ہے مزید اور گرین ایریاز کو ڈیولپ کریں۔ بچوں کے لیے کھیلوں کی گراؤنڈیں کراچی کے اندر ہونی چاہیے۔ مجھے جاوید میاداد اگلے دن ملے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب وہ کھیلتے تھے کرکٹ تو جو وہ گراؤنڈیں تھیں ان کے اوپر بھی کئیوں کے اوپر قبضے ہو چکے، تو اس لیے یہ ضروری ہے، یہ ہمارے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے صرف یہی نہیں کہ ان کو کھیلوں کی گراؤنڈیں ملیں، بٹ یہ بھی کہ ایک ماحول اچھا ملے جدھر پارکس ہو۔ تو یہ ایک جو پارک بنائی، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کے لیے ایک زبردست کام کیا آپ نے، اور میں یہ آگے بھی کہوں گا کہ اب سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ شہروں کو ہم نے اوپر جانے دینا ہے، بلڈنگز کو اوپر جانے دینا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جب بلڈنگز پھیلتی ہیں تو یہ جن ایریاز کے اوپر آپ نے گرین ایریاز بنانے ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ اگر کراچی میں اوپر جہاز میں آ رہے ہوں تو اس طرح لگتا ہے کہ کانکریٹ کا سلیب پڑا ہوا ہے، تو جب ایک کانکریٹ ہوتی ہے، جب سیمنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر دھوپ پڑتی ہے، گرمی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو پارکس ہیں ان کے لیے اور زیادہ کام کرنا چاہیے، اور ہم جو انشاءاللہ 10 ارب درختوں کا ہمارا ٹارگٹ ہے سارے پاکستان میں اگلے 5 سالوں میں، میں نے اپنے جو ہمارے انوائرمنٹل منسٹر ہیں امین اسلم، ان کو ہے کہ سٹی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کراچی میں اور صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے باقاعدہ سارے سندھ کے اندر یہ بہت ضرورت ہے درخت اگانے کی۔ جو جنگلات بھی تھے سندھ میں، وہ ہم نے جب سروے کیا ہے تو وہ جنگلاتوں کے اوپر بھی قبضہ ہوا ہے، اور بڑے بڑے جنگلات کاٹے گئے ہیں سندھ کے اندر، اور یہ صرف سندھ میں نہیں، پنجاب میں بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پرانے جنگل تھے کئی انگریز کے بنائے ہوئے، وہ جنگلوں کے اندر بڑے بڑے درخت کٹ گئے ہیں، ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے، ایک کوئی کمپنیز کے نام کے اوپر، لیزنگ کے نام کے اوپر وہ جنگلات صفائی کاٹ کے تو ان کے اوپر کاشت کے لیے طاقتور قبضہ گروپ نے وہ آکوپائی کیا ہے۔ یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان اس وقت دنیا میں 8 نمبر پہ ہے، وہ ملک جو سب سے زیادہ متاثر، جو 10 ملک جو سب سے زیادہ گلوبل وارمنگ سے متاثر ہونے والے ہیں، ان میں پاکستان کا نمبر 8 ہے۔ اس کا بڑا سیریس کانسیکوینسز ہیں آگے، اور ہماری آنے والی جو نسلوں کے لیے اگر ہم نے ابھی سے درخت اگانے نہ شروع کیے، گرین ایریاز نہ بچائے، تو یہ آگے ہماری نسلیں کبھی معاف نہیں کریں گی کہ ہم نے ان کے فیوچر سے جو ظلم جو ہم کریں گے۔ تو یہ ایک بڑی کیمپین شروع ہوئی ہے، اور میں سارے پاکستانیوں کو کہتا ہوں اس کے اندر شرکت کریں، اور شہروں کے اندر خاص طور پہ ابھی سے ہمیں گرین ایریاز کو بچانا چاہیے۔ میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو ابھی بچے ہوئے ہیں علاقے، ان کے اوپر گورنمنٹس کو فیصلہ کرنا چاہیے، ان کو روک دینا چاہیے ایکشن، اور وہاں ساری جگہوں کے اوپر درخت اگانے چاہیے، پارکس بنا دینی چاہیے۔ میں آخر میں وسیم پھر سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں یہ جو آپ نے پارک بنائی اور پرزرو کی، یہ واقعی آپ ساری کراچی کے لوگوں کی طرف سے خراج تحسین کے مستحق ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے باغ کا افتتاح کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ موسم میں تبدیلی کے لیے درخت بہت ضروری ہے، اور یہ باغ بننا ایک بہت اچھا عمل ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے باغ ابن قاسم کا افتتاح کر دیا ہے۔
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, नए पाकिस्तान में अवाम के लिए एक और बुरी खबर आ गई। 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत 12 रुपए फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत खजाना को भिजवा दी है। बिजली गैस के बाद पेट्रोल की कीमत में भी इजाफे की तैयारी, हुकूमत ने महंगाई की इंतहा कर दी। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत पेट्रोलियम और खजाना को अरसाल कर दी। समरी में 1 अप्रैल से पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 92 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज है, जबकि ओगरा ने पेट्रोलियम डिवीजन को डीजल की फी लीटर कीमत में 11 रुपए 17 पैसे इजाफे और मिट्टी का तेल 6 रुपए 65 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की है, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत भी 6.5 रुपए बढ़ाने की तजवीज है। जराये का कहना है कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में होने वाले इजाफे के बायस पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी, लेकिन अगर टैक्सेस को कम कर दिया जाए तो इजाफा टाला भी जा सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। अवैस कियानी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्के इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहते हैं रोज रोज पेट्रोल महंगा करना कौन सी तब्दीली है, लोगों की जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी गई है, ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए। अवाम का मजीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। ऊपर से पेट्रोल बम गिराना है, क्योंकि एक महीने में जो है ना 12 रुपए महंगा होना, ये किसी आवाम के साथ ज्यादती से कम नहीं है। आलमी मार्केट में पेट्रोल मेरे ख्याल में शायद महंगा हो गया है, लेकिन इमरान खान PM इमरान खान जो है ये इसमें तकरीबन 12 या 13 रुपए ज्यादा करने जा रहा है, तो ये हुकूमत का गलत इकदाम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पेट्रोल महंगा हो गया, इस पे जो है ना हमें हमारे ऊपर भी असर पड़ता है, बाकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। किधर खुश है, ये खुश है कि चाहिए कि नया पाकिस्तान वो देता, हमें रिलीफ देता, ये तो हमें महंगाई दे रहा है। पेट्रोल आप जानते हैं कि तमाम आम मुतवस्सित तबके का आदमी इससे अफेक्टेड है, तो इंतहाई नामुनासिब फैसला है। और फिर जब पेट्रोल कम होता है तो वो 1 रुपया 2 रुपया होता है, और जब बढ़ता है तो 10-10 रुपये बढ़ता है। सो आम आदमी पहले भी टैक्सेस की कर चुका है, तो तब्दीली सरकार को ये चाहिए कि जो वादे उन्होंने किए थे, ठीक है, अमीरों से टैक्स कलेक्ट करने के, FBR को मजबूत करने के, टैक्स रेट जो है वो बढ़ाने के, तो उस पर पूरा करें। आम आदमी को इतना बोझ डाले कि जितना वो आराम से बर्दाश्त कर सके। मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह पेट्रोल जो बढ़ाते रहे तो पूरी कौम जो है वो गाड़ियां बेचकर साइकिलों पर जो है वो आ जाएगी। इसको तरक्की तो नहीं कहते कि आप जो है वो हुकूमत में आए और आप तब्दीली का नारा जो है वो लगा रहे हैं, और आपका जो है वो हर टारगेट गरीब आदमी जो है वो बन रहा है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, बस गरीब आवाम पे ये बोझ ही है ना बहुत ज़्यादा। हुकूमत ने जो वादा किया था ना कि हम सस्ती चीज़ें फराहम करेंगे, लोगों के हकूक़ का ख्याल करेंगे, तो ऐसी कुछ चीज़ें नज़र नहीं अभी तक आ रही है। आगे ही बड़ी इसकी कीमत ज़्यादा है और इसका इम्पैक्ट बड़ा ज़्यादा होता है प्राइसेस पर। अब देखें कि ये 10 रुपये बढ़ने का मतलब ये है कि सारी जो चीज़ें हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ डेली यूजेज की, वो फिर प्राइसेस राइज हो जाती है। अवाम है परेशान, विफाकी हुकूमत अवाम पर महंगाई करने के लिए है तैयार। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज पेश कर दी है। इस हवाले से अवाम की राय क्या है, ये जानते अपने नुमाइंदा समीन नवाज से। समीन, क्या कहना है लोगों का? ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने वजारत पेट्रोलियम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए तजवीज़ पेश की है, और इस हवाले से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए जो 12 रुपये 92 पैसे 11 रुपये 92 पैसे इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है। इस पर शहरी जो है वो खासा परेशानी का शिकार नजर आते हैं, और उनका कहना है कि महंगाई का एक तूफान पहले से बरपा है, और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर 1 अप्रैल से मजीद इजाफा हो जाएगा तो इसका असर यकीनन तमाम तर सारिफीन पर होगा, और तमाम तर अशिया जो है वो खुद उनकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा, महंगी हो जाएंगी। लोगों का ये कहना है कि महंगाई कम करने के दावे ज़रूर किए गए थे, लेकिन ये महंगाई कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। लिहाजा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की जो तजवीज़ पेश की गई है ओगरा की जानिब से, उस पर थोड़ा गौर किया जाना चाहिए, और यकदम इतने ज़्यादा निर्ख बढ़ा देने से जो सारिफीन को परेशानी होगी उसको मलूज़ खातिर रखते हुए थोड़ा सा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कंट्रोल करने की कोशिश की जानी चाहिए। कोशिश की जाएगी। समीन, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह की बात करते हैं, जिन्होंने सक्कर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि क्या ये हुकूमत जमहूरी तरीके से आई है। मौजूदा हुकूमत में परवेज मुशर्रफ के वुज़रा शामिल हैं। मुल्क में पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी नहीं हुई। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करना अवाम के साथ जुल्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज भी कंटेनर पर चढ़े हुए हैं। गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, जमहूरी तरीके से आई है, एक। दूसरा ये है कि ये परवेज मुशर्रफ की शेडो गवर्नमेंट है, जस्ट लाइक शेडो। अगर आप इसमें सारे वज़रा देखेंगे तो वो वही है जो परवेज मुशर्रफ के ज़माने में उनके बहुत करीबी थे।
या उसके कैबिनेट का हिस्सा था। पब्लिक को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, वोटर को, अवाम को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि वो आदमी जो ट्रीजन में है, वो चला गया है पाकिस्तान से, उसकी कैबिनेट को मौजूदा हुकूमत की कैबिनेट का बहुत बड़ा हिस्सा बनाया गया है। अब उस पर हमें एतराज़ नहीं करना चाहिए, खुल के वो एक उस डिक्टेटर की कैबिनेट के ये लोग हैं, तो इसको जमहूरी कहना या इस किस्म की बात करना या इस किस्म का मुतालबा करना उनका हमें सूट नहीं करता। वो है, हमें तो इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क में हकीकी जमहूरियत आए, जिसके लिए हमने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है। हमने हर वक्त कोशिश की है कि पार्लियामेंट को सुप्रीम दिखाए और पार्लियामेंट्री निज़ाम को अफजल दिखाए, मगर खुद हुकूमत ने बारहा हर वक्त ये कोशिश की है खुद। जी हां, इस्लामाबाद चिड़ियाघर में हफ्ते और एतवार को बच्चों का रश, मगर बेजुबान जानवर भूख से निढाल। इसी पर बात करेंगे अपनी नुमाइंदा सबा वजीर से। सबा वजीर, बताइएगा, दो इदारों की लड़ाई में जानवर भूखे हैं, अब क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, दो इदारों की लड़ाई की वजह से आज जो चिड़ियाघर में जानवर हैं उनको खुराक नहीं मिल सकेगी। और इस वक्त भी मैं आपको बताती चलूँ कि 3 महीने से फंड्स की अदम अदायगी की वजह से जो जानवरों को खुराक देने वाली कंपनी है, उन्होंने आज से जानवरों की खुराक है वो बंद कर दी है। पिछले 3 महीने से अब तक 8 नील गाय, 2 पेलिकन और 4 शेर के जो बच्चे हैं वो मर चुके हैं। और इस वक्त भी चिड़ियाघर में एक तरफ तो खाना जो है वो नहीं दिया जा रहा जानवरों को, दूसरी तरफ सफाई के भी नाकस इंतजामात हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो बच्चे और लोग हैं वो जानवरों के लिए खाना ला रहे हैं, तो इंतजामिया की जानिब से उनको भी मना किया जा रहा है कि जानवरों को खाना ना दिया जाए। और इस वक्त भी चिड़ियाघर के आधे से ज़्यादा जो जानवर हैं वो निढाल हैं, भूख से मर रहे हैं। एक तरफ जानवर बहुत ज़्यादा निढाल और भूख से मर रहे हैं, तो दूसरी जानिब से जितने भी शहरी आ रहे हैं, आज जबकि छुट्टी का दिन है और इस्लामाबाद का ये वाहिद पार्क है जहाँ पर बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। तो नाज़रीन, चिड़ियाघर में जानवरों को खाना न मिलने पर शहरियों का क्या कहना है, आप भी देखिए। वो इधर जानवरों को खाना नहीं दे रही है, इस वजह से जो है ना जानवर जो है वो भूखे मर रहे हैं। तो हम इंतज़ामिया को ये अपील करती है कि वो खुद खाना दे। खाने के लिए जानवरों के पास जो है वो कुछ ख़ास जो है हमें कभी नज़र नहीं आया। जो हम देखते हैं कि सफाई का और फिर इनकी खुराक का कोई खतर का जो है इंतज़ाम ना मौजूद है, ना इसका ख्याल रखा जा रहा है। एक्चुअली बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी तफरीह गाह है और बच्चे दे लव टू कम ओवर हियर। हमारी गवर्नमेंट से और CDA से ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ इन जानवरों के लिए ऐसा बजट महसूस करें कि ये बेचारे भूख से ना मरें। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर सफाई करवाई जाए बहुत, और जानवर भी यहाँ पर बहुत भूखे हैं, बहुत कमज़ोर। इसी के साथ इन स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।